عام انتخابات کی تیاریاں کہاں تک پہنچی؟ نگراں وزیر اعظم ناصر الملک کی زیر صدارت اہم اجلاس آج ہوگا۔ سیکیورٹی اور دیگر انتظامات سمیت تمام معاملات کو حتمی شکل دی جائے گی۔ کپتان NA-95 میاں والی سے الیکشن لڑ سکیں گے یا نہیں؟ کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر ٹریبیونل میں فیصلہ محفوظ، آج ہی سنائے جانے کا امکان۔ عائشہ گل علی اور رمیش لال کے خلاف اپیلوں پر سماعت کل تک ملتوی۔ NA-53 اسلام آباد سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل۔ الیکشن ٹریبیونل نے شاہد خاقان عباسی کی درخواست پر الیکشن کمیشن سے کل تک معاونت طلب کر لی۔ صدر نون لیگ باضابطہ الیکشن کمپین شروع کرنے کو تیار، شہر قائد پہنچ گئے، میل ملاقاتیں کریں گے۔ کراچی کو 21ویں صدی کا ترقی یافتہ شہر بنانے کا وعدہ، روشنیوں کے شہر میں امن کا کریڈٹ بھی لے لیا۔ شیخ رشید احمد دوسرے روز بھی حلقے میں سرگرم، اقتدار میں آ کر شہر کے میگا پروجیکٹ مکمل کرنے کا وعدہ۔ ووٹر سے ملاقاتوں کے ساتھ چنے، پائے اور نہاری پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ کپتان کا دبنگ فیصلہ، قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے علاوہ جنرل سیٹ پر بھی 13 خواتین کو ٹکٹ جاری کر دیے۔ پنجاب سے 9، سندھ سے 4 ٹائیگرز سیاسی مخالفین سے مقابلہ کریں گی۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات ملتوی کرانے کی درخواستیں مسترد کر دی۔ فاٹا کی قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے ایک ساتھ انتخابات ممکن نہیں، محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا۔ مختلف قبائل کا اسلام آباد کی طرف مارچ، پولیس نے ڈی چوک کے قریب روک دیا۔ طلال چودھری نکلے کنگال، اپنا گھر ہے نہ ذاتی گاڑی، رہائش گاہ بھی اہلیہ کے نام پر۔ سابق وزیر مملکت کے تمام تر اثاثے 50 لاکھ، بینک کے 50 لاکھ روپے کے ہی مقروض نکلے۔ اسلام آباد میں پانی کی قلت کا کیس، رپورٹ آ جاتی ہے لیکن پیش رفت نہیں ہوتی، حکومت کدھر ہے؟ بتا دیں تو بلا لیتے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم یہ مسئلہ خود دیکھیں، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ آف شور کمپنی سے متعلق تحقیقات، زلفی بخاری نیب راولپنڈی آفس میں پیش۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے کپتان کے قریبی دوست سے آمدن کے ذرائع پوچھے۔ علی ظفر اور میشا شفیع کے کیس میں نیا موڑ، لاہور کی عدالت نے اداکار کی درخواست پر گلوکارہ سے جواب طلب کرتے ہوئے مزید بیان بازی سے روک دیا۔ فیصل آباد میں نجی فوڈ فیکٹری میں آگ لگ گئی، فیکٹری میں کام کرنے والے 10 بچے جھلس گئے۔ صوبائی وزیر لیبر اور انسانی حقوق کا نوٹس، چائلڈ لیبر سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ خبر دیں گے، NA-95 میاں والی سے عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے۔ اپیلیٹ ٹریبیونل نے ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا۔ اہم معاملہ ہے، حلقہ ہے NA-95 جہاں سے عمران خان نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، اس پر اعتراضات آئے، جس کے بعد ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پھر اپیل کی صورت میں انہوں نے الیکشن ٹریبیونل سے رجوع کیا، جس پر اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ تو NA-243 کراچی، NA-131 لاہور، NA-95 میاں والی اور NA-35 بنو سے اب عمران خان الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں 4 حلقوں سے۔ اور تازہ ترین اپڈیٹ آئی ہے NA-95 سے متعلق، مزید تفصیلات ہمارے نمائندے محمد اشفاق سے جان لیتے ہیں۔ اشفاق، کہیے گا۔ جی بالکل، اپیلیٹ ٹریبیونل نے عمران خان کو حلقہ NA-95 میاں والی سے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے اور ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا ہے۔ اور عدالت میں عمران خان کے وکیل بابر وان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ عمران خان کے کاغذات نامزدگی تکنیکی بنیادوں پر مسترد کیے گئے۔ حالانکہ عمران خان نے تمام اثاثے ظاہر کیے ہیں، قواعد و ضوابط پورے کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود کاغذات نامزدگی NA-95 سے مسترد کر دیے گئے
जाएंगे। अपील में ये सलाह की गई थी कि अपीलेट ट्रिब्यूनल इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार देता। हम दूसरी जानिब मुखालिफ वकील ने इन दलाइल की मुखालफत की तो ट्रिब्यूनल ने तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद मुख्तसर फैसला सुनाते हुए इमरान खान को 95 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है और ट्रिब्यूनल और रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार दे दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इरफान। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि आम इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है। मुत्तहिदा कबाइल पार्टी की इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। फैसले में कहा गया है कि फाटा में एक ही रोज कौमी और सूबाई सीट पर इलेक्शन नहीं हो सकते। कौमी कबाइल पार्टी की मुत्तहिदा कबाइल पार्टी की जानिब से यह दरख्वास्त दी गई थी कि एक ही रोज निगरान सेटअप के तहत फाटा में भी इंतखाबात कराए जाएं, कौमी असम्बली की सीट्स के लिए, सूबाई असम्बली की सीट्स के लिए। और इसे यह कहा गया था कि यहाँ अगर इल्तवा का भी मामला जो है वो काबिल गौर होता है तो इल्तवा का शिकार हो जाए इलेक्शन, लेकिन एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए। अलबत्ता मुत्तहिदा कबाइल पार्टी की इलेक्शन मुलतवी करने की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी गई है। इलेक्शन यानी आम इंतखाबात अब वक्त पर होंगे। जो मुख्तलिफ दरख्वास्तें थी, जो मुख्तलिफ मुतालबात थे वो दम तोड़ते नजर आ रहे हैं और इसी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज ये फैसला सुना दिया है। इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है और ये कहा है कि फाटा में एक ही रोज कौमी और सूबाई सीट पर इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है जिसके मुताबिक आम इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। मुत्तहिदा कबाइल पार्टी की इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। फैसले में कहा गया है कि फाटा में एक ही रोज कौमी और सूबाई सीटों पर इलेक्शन नहीं हो सकते। फाटा के इंजमाम के बाद की ये सूरत हाल है कि जहां पर फाटा से अभी आवाज आ रही है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के जो सीट्स हैं फाटा की, वहां इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए, यानी कि 25 जुलाई को जब मुल्क भर में पोलिंग हो रही होगी। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा मामलात हैं इंजमाम के बाद के, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया है। मजीद क्या कहा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस फैसले में, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे अदील वड़ाइच से। अदील, कहिएगा क्या फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का मजीद? जी, जो मुख्तसर फैसला सुनाया गया है इसमें तीनों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं, जिनमें ये इस्तदा की गई थी कि जो फाटा की सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात कौमी असम्बली के इंतखाबात के साथ ही कराए जाएं, क्योंकि 31वीं तरमीम के बाद जो फाटा की सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हैं वो बाद में कराए जाने हैं। तो इस पर जो बैरिस्टर फ़रोग नसीम हैं और कामरान मुर्तज़ा ये पेश हुए और रमज़ान चौधरी पेश हुए, उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई कि ये आइन के आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है। एक ही रोज़ इंतखाबात कराए जाना जो आइन का तकाजा है, मगर एक दिन इंतखाबात ना कराए जाने से जो पहले से आए नताइज हैं वो असरअंदाज होंगे बाद में जो सूबाई असम्बली के इंतखाबात हैं उनके नताइज पर। तो इलेक्शन 3 से 4 महीने तक मुलतवी करने पड़े तो ये भी कर दिए जाएँ और इसमें बाकायदा इस्तदा की गई कि तकरीबन 4 महीने तक जो आम इंतखाबात हैं ये मुलतवी कर दिए जाएँ। तो आज ही फैसला महफूज करने के बाद कुछ देर बाद ये फैसला सुना दिया गया, जिस पे मुत्तफ़िका तौर पर इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला सुनाया है कि आम इंतखाबात मुलतवी नहीं किए जाएंगे। और आइन की जो 31वीं आइनी तरमीम है उसमें जो कहा गया है कि जो फाटा की जो सूबाई नशिस्तें हैं उस पर इंतखाबात बाद में ही कराए जाएंगे और इंतखाबात 25 जुलाई को ही होंगे। और फाटा के हवाले से जो 3 दरख्वास्तें दायर की गई थी वो तीनों दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अदील वड़ाइच। आगे बढ़ते आपको बताएं कि नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को मानसारा से टिकट मिल गया है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर NA 14 से कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे। मानसेहरा से कैप्टन रिटायर्ड सफदर को ये टिकट मिला है। यहाँ से इस हल्के से वो पहले भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं। पुरानी हल्का बंदियों में ये हल्का NA 21 था, लेकिन नई हल्का बंदियों में ये NA 14 है। और अपने पुराने ही हल्के से कैप्टन रिटायर्ड सफदर, अपने आबाई हल्के से कैप्टन रिटायर्ड सफदर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और उन्हें पार्टी टिकट मिल गया है। टिकट्स की तकसीम के ये दिन हैं और टिकट्स की तकसीम पर यू टर्न लेने के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ ने फिर कई हलकों में नामजदगियां बदल दी हैं। PTI ने इंतखाबी खिलाड़ियों की हतमी फहरिस्त भी जारी कर दी है। इसी हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। टिकट्स के तकसीम पर PTI ने यू टर्न लेने का नया रिकॉर्ड बना लिया।
तहरीक इंसाफ ने बिहाड़ी से पहले जट फैमिली को टिकट दिए, फिर वापस ले लिए। NA 162 में अब आयशा नजीर के बजाय खालिद चौहान और PP 229 में नजीर जट की जगह हमायूं इफ्तिखार मैदान में होंगे। बड़े खिलाड़ियों ने मुल्तान में भी यू टर्न लिया। NA 154 में पहले सिकंदर बोसिन को नामजद किया, फिर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। NA 74 सियालकोट से बैरिस्टर मंसूर को जारी टिकट गुलाम अब्बास को दे दिया। NA 83 और PP 57 गुजरावाला में भी नामजदगियां वापस ले ली गयी। NA 80 में ख्वाजा सालेह की जगह सदीक महर मैदान में आ गए। PP 57 में नोमान चट्ठा के बजाय चौधरी मोहम्मद अली उम्मीदवार बन गए। NA 92 साहिवाल सरगोदा का टिकट भी जफर कुरैशी के बजाय कासिम सयालवी को थमा दिया गया। NA 113 में पहले हैदर खरल को टिकट जारी किया गया, अब रियाज फतियाना को दे दिया। पहले जमशेद दस्ती के मुकाबले में उम्मीदवार नहीं लाए गए, अब उम्मीदवार खड़े कर दिए। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के इंतखाबी खिलाड़ियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई। कौमी असेंबली की 272 में से 229 हलकों के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा के 99 में से 90, पंजाब के 238 हलकों, सिंध के 79, बलोचिस्तान के 36 और इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। फाटा के 11 हलकों से भी उम्मीदवार सामने लाए गए। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में अवामी नेशनल पार्टी सब पर बाजी ले गई है। कराची के इंतखाबी मैदान में सबसे ज्यादा ख़वातीन उम्मीदवारों को उतारा गया है। 9 सियासी जमातों ने कराची की 65 जनरल नशिस्तों पर 16 ख़वातीन उम्मीदवार नामजद किए हैं। कराची से असलम खान की रिपोर्ट। विमेन एम्पावरमेंट का दावा करने वाली सियासी जमातों ने मेट्रोपॉलिटन शहर से इंतखाबी अमल में खवातीन को नजरअंदाज कर दिया। मुत्तहदा मजलिस अमल, सुन्नी तहरीक और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों में एक भी खातून शामिल नहीं। माजी में खवातीन को सबसे ज्यादा टिकट देने वाली मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने अब तक हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त ही जारी नहीं की। कराची से पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली के अखाड़े में सिर्फ 2, जबकि सूबाई असेंबली के मैदान में भी 2